Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Question says, how many bricks each of size 25 centimeter, 13.5 centimeter and 6 centimeter will be required to build a wall 8 meter long, 5.4 meter high and 33 centimeter thick. So in the question they say that we have to build a wall. They have given the length, breadth, height of the wall and they say that we are constructing this wall using bricks. And they have also given us the length, breadth and height of bricks. Now understand that both the bricks and the wall, they are cuboidal shape. तो हमें एक wall बनानी है जो कि cuboid shape की होगी. You will assume, even if the question doesn't say, you have to assume that wall is always a cuboidal shape where the length, breadth and height. Length of the wall is 8 meter, which is 800 centimeter. Breadth of the wall is 5.4 meter, which is 540 centimeter. And height of the wall is 33 centimeter. It is already given in centimeters, so no need of conversion. And they say that we also have a brick. And they have also given the length, breadth and height of the brick. This is the brick. The length, breadth and height of a brick, assume that also to be a cuboid. The length is 25 centimeter. Breadth is 13.5 centimeter. And height is 6 centimeter. So they say that अगर हमें इस तरह की एक wall बनानी है तो कितने bricks हमें लगेंगे. Remember the formula of number of bricks is given by number of bricks. आपको लेना है तो आप क्या करो, आप पहले तो volume of wall ले लो, that is volume of wall, और उसको आप डिवाइड कर दो by volume of one brick. वॉल्यूम ऑफ वॉल क्योंकि वो क्यूबॉइड है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक दैट इज आल्सो अ क्यूबॉइड, सो दैट विल टू बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट. अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में देयर इज वन ट्रिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कन्वर्जन ऑफ यूनिट विल बी द की रोल. तो ऐसा आप ना करें कि वॉल्यूम ऑफ वॉल तो हमें मीटर में दिया है तो उसे मीटर में ही रखें. दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस कन्वर्जन इनिशियली. यहीं पर हमने ये कन्वर्जन कर लिया 8 मीटर इंटू 800 सेंटीमीटर, 5.4 मीटर इंटू 540 सेंटीमीटर एंड 33. तो ये आप यूनिट्स आपको सेम करना जरूरी है. लेट्स नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द न्यूमरेटर. टेक द वॉल्यूम ऑफ वॉल इन सेंटीमीटर 800 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 540 सेंटीमीटर multiplied by 33 centimeter upon volume of one brick. The values are already given in centimeters, so conversion is not required. That's 25 multiplied by 13.5 multiplied by 6. Now अब इसका simplification हम करेंगे. So let us simplify this. We can cancel 25 and 800. ये हो जाएगा 25 and this is ये 32 आ गया. When you divide 800 by 25 you will get 32. Now this is 13.5. 13.5 has 1 decimal place. और जब भी डिनोमिनेटर का 1 decimal place हटाना है तो इसको हम बना सकते हैं 135 और डिनोमिनेटर का 1 decimal place इसे हटाया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा 10. तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा वो 13.5 का 135 और न्यूमरेटर में ये आ गया 10. अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सी 540 एंड 135 यू कैन सिंप्लीफाई दिस बाय 3 और बाय 9 ऑल्सो यू कैन सिंप्लीफाई. लेट अस सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम बाय 9.
So we know that 9 6 जा 54 and 9 15 जा, this is 9 1 जा 9 9 5 जा, तो ये 9 से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 15 हो गया और ये 9 6 जा 54 है, so this is 60. 6 and 60 we can simplify as 6 1 जा 6 10 जा. Now denominator are all gone, सिर्फ ये 15 बचा है. 15 let's cancel by 5, so this is 5 3 जा, this is 5 2 जा, 3 and 33 we can cancel, this is 1 जा, this is 11 जा. So now I am left with in the numerator 32 multiplied by 10 multiplied by 11 multiplied by 2. So in this 32 and 2 ये हो गया 64 multiplied by 10 multiplied by 11, multiply 64 and 11, 64 and into 11, this is 704, that we have already discussed the trick of multiplication of 11, and final answer is 7040. That is our final answer. Total number of bricks required will be 7040. That is option number A, our answer. Question says the rainfall recorded on a certain day was 5 centimeter. Find the volume of water that filled on a 2 hectare field. तो ये क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारे पास 2 हेक्टेयर का एक फील्ड है, ये है हमारा 2 हेक्टेयर का एक फील्ड, और इस 2 हेक्टेयर के फील्ड में बारिश हुई है. अब भाई बारिश होगी तो उसमें कुछ पानी जमेगा, तो पानी जमने का जो लेवल इन्होंने बताया है वो बताया कि 5 सेंटीमीटर पानी इसमें जम गया है. तो बेसिकली पानी के लेवल का मतलब पानी का जो डिपोजिशन है उसकी हाइट दी है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर, ज़मीन से लेकर 5 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी जम गया है. तो ये वो पानी जम गया है. अगर ये हमारा 2 हेक्टेयर का फील्ड है तो इतना उसमें पानी जम गया है. ये मैंने जो बार्स बनाए, जो लाइन बनाई, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उसमें पानी का लेवल है, इतना उसमें पानी भर गया है. तो अब इन्होंने बोला कि ये जो पानी भरा हुआ है इस ग्राउंड में, इसका वॉल्यूम बताओ क्या है. तो इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको देख के समझ में आ गया कि ये तो एक क्यूबॉइड शेप बन गया है, और अगर ये क्यूबॉइड शेप बन गया है तो इसमें पानी का जो वॉल्यूम होगा वो निकालने के लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए. वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी गिवन बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. अच्छा, हाइट इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, हाइट इज 5 सेंटीमीटर. दे हैव गिवन द एरिया ऑफ द फील्ड एज 2 हेक्टेयर. नाउ रिमेंबर 1 हेक्टेयर is 10,000 meter square. So 2 hectare will be 20,000 meter square. तो एरिया हमें मीटर स्क्वायर मतलब एरिया हो गया. अब ये जो फील्ड है आप अज्यूम कर सकते हैं दैट इज रेक्टेंगुलर शेप, और अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि हमें पता चल गया 20,000. So now we have the value of L into B as 20,000 मीटर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये एरिया है, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. तो अब हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू 20,000 मिल गई. सो दिस इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय हाइट. इन्होंने 5 सेंटीमीटर दी है, बट द प्रॉब्लम इज कि लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में है, तो हाइट भी आप मीटर में ले लीजिए. हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, डिवाइड बाय 100. तो ये हो गई हाइट हमारी मीटर में 5/100. That I will substitute here, that is 5/100. तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 20,000 आ गया और हाइट 5/100 आ गई. ये सारे मीटर में यूनिट्स आ गए. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 100 के 2 0, 20,000 के 2 0 कट कर लो. 200 इंटू 5, आंसर इज 1000 मीटर क्यूब. वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब. सो जो पानी का जो वॉल्यूम है, जो पानी का जमा है यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब है. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन सिंपल था, बस इन्होंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ को हेक्टेयर बना दिया था, और वो हेक्टेयर को हमने मीटर स्क्वायर में लिया, और उसके बाद फिर हमने उसे कन्वर्ट किया. क्लास 7th की एनसीईआरटी में हेक्टेयर का एक चैप्टर में हेक्टेयर की वैल्यू दी हुई है कि 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर. हेक्टेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ना तो एग्जाम में आज तक आए हैं और ना ही आगे आएंगे.
कई सारे रेफरेंस बुक्स में इस कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है। एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं ही नहीं, बट यू शुड नो दिस। The question says, what will happen to the volume of a cube if its edge is doubled? कि अगर एक क्यूब के एज का मतलब साइड हो गया, अगर हम साइड को डबल कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। लेट अस ड्रॉ दिस क्यूब। So this is our cube. So now that we have drawn two cubes, let us assume this is the first cube. और इसकी साइड एज को या तो आप कोई वैल्यू ले लो, आप 10 ले लो या 1 ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक इट। समझने के हिसाब से लेट अस अज्यूम द एज ऑफ दिस स्मॉलर क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। इसको 10 ले लेते हैं, और बड़े वाले क्यूब का हो जाएगा उसका डबल मतलब 20। तो अब हमें ये बताना है कि वॉल्यूम का क्या चेंज आएगा। अच्छा, फर्स्ट केस में अगर साइड 10 है तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी साइड क्यूब 10 क्यूब। 10 क्यूब हो जाता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 1000। तो यहां पर हमारा वॉल्यूम आ गया 1000। लेकिन अब अगर हम साइड को डबल कर दें तब अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वो हो जाएगा 20 क्यूब। 20 क्यूब इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज 8000। तो हमारा पहले जब साइड 10 था वॉल्यूम 1000 था, साइड हमने डबल किया, एज को हमने डबल किया, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया? 8000 हो गया। मतलब 1000 का 8000 हो जाना मीन्स इट बिकम्स 8 टाइम्स हो गया। ये मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया मीन्स 8 टाइम्स हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट बिकम्स 8 टाइम्स। अच्छा, इसको हमने यहाँ पर वैसे तो 10 और 20 लेकर किया, आप इसको 1 और 2 लेकर भी कर सकते थे, ए या 2a लेकर भी कर सकते थे, वॉट एवर यू वांट, आप किसी भी हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा कि अगर आप साइड को डबल करेंगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। या वो इफ साइड इज डबल देन वॉल्यूम विल बी क्यूब टाइम्स। तो डबल मतलब 2 टाइम्स हो गया, डबल का मतलब क्या हो गया? इंटू 2। तो वॉल्यूम जो होगा वो 2 का क्यूब हो जाएगा। अगर साइड को ट्रिपल किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने साइड को 3 टाइम्स किया होता, अगर साइड को इंटू 3 किया होता, 3 टाइम्स किया होता, तो हमारा वॉल्यूम हो जाता 3 का क्यूब टाइम्स, मतलब 3 क्यूब हो जाता। 3 क्यूब मतलब 27 टाइम्स इंक्रीज होता। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं। यू बी वेरी अटेंटिव। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेज three cuboids of dimension 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter. Second one 4 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter. And the third cuboid 2 centimeter, 3 centimeter and 13 centimeter. They are melted. 3 cuboid हमने melt कर दिए, they melted and a cube is formed. इनको melt करके हमने cube बनाया। Question is asking what is the side of the cube. तो जो ये हमारा cube बना उसकी side की value क्या है? Let us draw 3 cubes first. So now that we have drawn the 3 cubes, the first one length is 5, breadth is 6, height is 7. The second cuboid length is 4 centimeter, breadth is 7 and the height is 8. And the third cuboid, it is 2 centimeter, 3 centimeter and 13 centimeter. Now अब हमने इन तीनों cuboid को melt कर दिया
और मेल्ट करके हमने इन तीनों से एक क्यूब बनाया. एंड द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि जब आप तीन अलग अलग क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक क्यूब बनाएंगे, देन रिमेंबर कि जो उनका वॉल्यूम है, तीनों क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो इन तीनों क्यूबॉइड का जो टोटल वॉल्यूम है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विच वी हैव फॉर्म्ड. अब हमने उस क्यूब की अगर वॉल्यूम पता चल जाए तो उसकी साइड हम निकाल सकते हैं. इफ यू नो द वॉल्यूम देन वी कैन फाइंड आउट द साइड. हाउ टू डू दैट? पहले एक काम ये करना है कि पहले जो तीन छोटे छोटे क्यूब है इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं. हमें बड़े वाले क्यूब का जो फॉर्म हुआ है मेल्ट करके उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा. वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हम उससे साइड निकाल सकते हैं, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ साइड इज क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. So let us first find out the volume of these three small cubes. Volume of first cube, sorry, not a cube, cuboid. Volume of first cuboid, length into breadth into height है. Let's multiply. That's 5 multiplied by 6 multiplied by 7. 5 6 are 30. 30 into 7 is 210. I am not writing the units. Units इनके सेंटीमीटर क्यूब में होंगे, but let us not do that. The volume of second cuboid will be 4 multiplied by 7 multiplied by 8. Now that will give us 4 7s are 28, and 28 plus 28 multiplied by 8 is 224. So the volume of second cuboid is 224, and the third cuboid will be given by 2 multiplied by 3 multiplied by 13. 2 3s are 6 and 13 6 are 78. So we get the volume of all the three cuboid. और अब आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि इन तीनों को प्लस करके जो वॉल्यूम आ रहा है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड. एडिंग देम, दिस इज 2 कैरी 1, दिस इज 2 plus 2 4 plus 7 11 carry 1, and this is 5. So the volume of this bigger cube, ये जो क्यूब बना इसका वॉल्यूम आ रहा है 512. और यहाँ से हमारा क्वेश्चन वेरी सिंपल. सो साइड इज क्यूब रूट ऑफ साइड इज क्यूब का जो साइड होगा दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 512. 512 का क्यूब रूट क्या है? वी नो 8 है. सो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई. इफ नॉट देन वी कैन ऑल्सो डू द क्यूब बाय फैक्टराइजेशन. पर मैंने इस टॉपिक के बिगनिंग में ही आपको सारे क्यूब्स लिखाए हुए और पहले भी आपको बताया कि क्यूब्स अगर आप 30 तक याद करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Question says how many wooden cubical blocks of side 25 centimeter can be cut from a log of wood of size 3 meter by 1.5 meter by 1 meter assuming that there is no wastage. तो इन्होंने बताया कि हमारे पास एक log of wood है, मतलब लकड़ी का एक बहुत बड़ा पीस है, और उस log of wood में से हमें कट करने हैं क्यूबिकल शेप के छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स. So let us take this big cuboid as the log of wood, and from that let us cut cubical blocks. इसमें से हम कट करेंगे छोटे छोटे क्यूबिकल ब्लॉक्स, और क्योंकि वो क्यूबिकल ब्लॉक्स है तो उनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें सेम ही दी हुई है. तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने क्यूबिकल बॉक्स हम कट कर सकते हैं. क्यूबिकल बॉक्स की हमें जो साइड्स बताए हैं वो 25 सेंटीमीटर ईच है, और जो लॉग ऑफ वुड की लेंथ है वो 3 मीटर है. 3 मीटर मीन्स 300 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ उसकी 1.5 मीटर है विच इज 150 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 1 मीटर विच इज 100 सेंटीमीटर. सो
how many cubical blocks will be cut? So number of cubical blocks के लिए हमें ये करना होगा that we have to divide the total volume of the log of wood, volume of log of wood divided by volume of one cubical block. That will be in the denominator, volume of one cubicle. इससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए. So log of wood cuboid है, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और क्यूबिकल ब्लॉक क्यूब शेप है तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी साइड इंटू साइड इंटू साइड. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. दिस इज 300 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, हमने यूनिट सेम कर लिया है सेंटीमीटर में, एंड 100 सेंटीमीटर अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25. यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे. यू कैंसिल 25 एंड 100, दिस इज 4. You cancel this 25 and 150, this is 6. You cancel this 25 and 300, this is 12. So our final answer is 12 multiplied by 6 multiplied by 4. 12 multiplied by 6 is 72. 72 multiplied by 4 is 288. So our final answer will be 288 wooden cubical blocks. Answer will be option number D. हमें 288 wooden blocks मिलेंगे जब हम एक बड़ा log of wood ये यहाँ पर काटेंगे. Question says a cube X has a side thrice as long as that of cube Y. What is the ratio of volume of cube X to that of cube Y? क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि हमारे पास दो क्यूब है X and Y. So now we have two cubes. The first cube is X, the second cube is Y. The question says that the cube X has a side thrice as long as that of cube Y. तो cube X की जो साइड है वो thrice मतलब 3 times है. किसका? Y का 3 times है. तो अगर क्यूब Y की एक साइड है 10, तो क्यूब X की एक साइड हो जाएगी thrice means 3 times means 30. This is how much? This is thrice. तो उन्होंने पूछा है कि उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ. वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ क्यूब Y विल बी साइड क्यूब which will be 10 cube and the volume of the cube X will be side cube which is 30 cube. अब इन दोनों का आप रेशियो ले लो. So वॉल्यूम ऑफ क्यूब X, लेट्स से उसे Vx बोल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब Y उसे Vy बोल देते हैं. दिस विल बी 30 क्यूब अपॉन 10 cube. Now 30 cube is 30 multiplied by 30 upon 10 multiplied by 10 multiplied by 10. Actually we have done this question previously. We have explained, I have explained this question previously. 0 0 आप 0 0 कट कर दीजिए. न्यूमरेटर 3 into 3 into 3 is 27. डिनोमिनेटर 1 into 1 into 1 is 1. तो रेशियो आ जाएगा 27:1. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब X to the ratio volume of cube Y is 27:1. Answer is option number D. Question says a swimming pool is 250 meter long and 130 meter wide. 3250 cubic meter of water is pumped into it.
फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ऐसा बता रहा है कि एक हमारे पास स्विमिंग पूल है। अगर क्वेश्चन में बताया स्विमिंग पूल है तो आप ये समझ जाइए कि स्विमिंग पूल एक क्यूबॉइड शेप होता है। तो इसका मतलब इन्होंने हमें एक क्यूबॉइडल शेप का स्विमिंग पूल बताया हुआ है। तो एक क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक क्यूबॉइडल शेप का एक स्विमिंग पूल ये हमने बना लिया। और इन्होंने इस क्यूबॉइडल शेप के स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है हमें। अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमें दी हुई है तो और इन्होंने बोला है कि इसमें अगर हम पानी डालेंगे, कितना पानी डालेंगे, 3250 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हम इस स्विमिंग पूल में डालने वाले हैं वो है 3250 मीटर। क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि ये पानी का वॉल्यूम है। लेंथ इन्होंने बताया हुआ है 250 मीटर। ब्रेड्थ भी, विड्थ मतलब ब्रेड्थ भी बताई हुई है 130 मीटर। तो उन्होंने बोला कि जब हम इतना पानी, मतलब अगर वॉल्यूम 3250 हो तो राइज इन लेवल मतलब इस स्विमिंग पूल की हाइट क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन। हाइट का फॉर्मूला है डायरेक्ट, सिंपल फॉर्मूला हाइट का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट? वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम इज 3250 अपॉन लेंथ इज 250 एंड ब्रेड्थ इज 130। अब ये आप डिवाइड कर लीजिए, 0 और 0 हम कट कर लेते हैं। ये एक एक 0 आप कट कर लो। अच्छा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो 325 ही होता है। 0 0 कट कर दिया। 25 इंटू 13 होता है 325। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 0 भी है, तो ये न्यूमरेटर तो हमारा 325 है पर डिनोमिनेटर हमारा 3250 हो जाएगा। जिसको आप कट करोगे तो न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में हमें 10 मिलेगा। 1/10 विल गिव मी 0.1। तो इसकी जो राइज ऑफ वाटर लेवल, ये जो हाइट है इसकी आप, दैट इज 0.1 मीटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन था आसान, वर्ड प्रॉब्लम से इसे थोड़ा कंफ्यूज करने की। राइज इन वाटर लेवल मतलब पानी की हाइट क्या होगी, हाइट निकालनी थी। वॉल्यूम दिया था, लेंथ दिया था, ब्रेड दिया था, हाइट निकालनी थी, सिंपल फॉर्मूला। आंसर इज ऑप्शन ए। Question says 4 cubes of edge 4 cm each are joined end to end. Find the volume of the resulting solid. हमने 4 cubes लिए हैं 4 cm जिसकी साइड है और हमने उन्हें जोड़ दिया है एंड टू एंड में, और इससे जो सॉलिड बना है, इससे जो शेप बना है वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। उसकी वॉल्यूम हमें बतानी है। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन लेट्स ड्रॉ 4 cubes and join them end to end. Now here you can see that we have joined 4 cubes end to end and the edges of each of these cube is 4 cm each. तो अभी ये हमने 4 क्यूब लेकर चारों क्यूब को जोड़ दिया, एंड टू एंड जोड़ दिया, मतलब एक तरफ से जोड़ दिया, और इसमें हर एक क्यूब में जो इनकी साइड है वो 4 सेंटीमीटर बताई हुई है। तो आप देखिएगा ये जो अब हमारा शेप बना, ये क्यूबॉइड शेप बना जिसकी लेंथ हो जाएगी ये 4, दूसरे क्यूब का ये लेंथ 4, तीसरे क्यूब का ये लेंथ 4 और फोर्थ क्यूब का भी ये लेंथ 4। तो अब हमारा जो रिजल्टिंग शेप बना है उसकी लेंथ क्या हो गई है? उसकी लेंथ टोटल 4 + 4 + 4 + 4 16 हो गई है इसकी लेंथ। अच्छा, ब्रेड्थ तो उसकी सेम रहेगी, 4 ही रहेगी, और हाइट भी उसकी सेम ही रहेगी, 4 ही रहेगी। तो ये क्यूबॉइड हो गया है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लीजिए। इट इज लेंथ into breadth into height. Length is 16 into 4 is 64 into 4 is 256. Answer is 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आए हैं, आगे भी चांसेस हैं कि अगर हमने क्यूब्स को इस तरह एंड टू एंड जोड़ दिया तो क्या होता है कि लेंथ चेंज हो जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। तो नया जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका आप वॉल्यूम इस तरह से निकाल सकते हैं। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सेज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक क्यूब की वॉल्यूम दी हुई है 343 और हमें क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछा है। तो अगर हमें एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 343 और अगर हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, देन सरफेस एरिया इज 6 × साइड स्क्वायर। ये हमारा क्यूब है और इसकी वॉल्यूम
given in the question as 343 centimeter cube, and the question is asking the total surface area. So total surface area is 6 multiplied by side square. अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें साइड निकालना पड़ेगा. साइड हमें कहाँ से मिलेगा? वॉल्यूम से मिलेगा. वी नो दैट साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. सो साइड इज क्यूब रूट ऑफ 343. क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7. तो साइड की वैल्यू आ गई 7. इफ नॉट देन यू कैन ऑल्सो फैक्टराइज 343. इट इज 7 इंटू 7 इंटू 7. ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे. सो क्यूब रूट आप उसका 7 निकाल सकते हैं. तो साइड की वैल्यू 7 आ गई. साइड की वैल्यू 7 आ गई तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर. दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर इज 49. आंसर इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी. काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है. वॉल्यूम दे दिया है, सरफेस एरिया पूछ लिया है, या सरफेस एरिया दे देंगे, वॉल्यूम पूछ लेंगे. अप्रोच सेम रहेगा. साइड निकालिए और रेस्पेक्टिवली, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम दिया था तो साइड निकाल लिया, साइड को यूज़ करके सरफेस एरिया निकाल लिया. क्लासिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है. पहले बहुत आया, अब चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है. Question says find the volume of a cube whose surface area is 600 centimeter square. Surface area is 6 multiplied by side square. The value of surface area is given as 600. That is equal to 6 multiplied by side square. Divide 6 and 600. This is 1. This is 100. 100 equals to side square. So side equals to 10. As side will be square root of 100, so side is 10 because 10 square is 100. If side is 10, then the volume is side cube. Side is 10. Side cube is 10 cube. 10 cube is 10 multiplied by 10 multiplied by 10. Answer is 1000 centimeter cube. So the volume of this cube is 1000. Answer is option number D. Says the dimension of a cuboid are in the ratio 5:3:1. Length, breadth और height की रेशियो दी हुई है. The ratio is 5:3:1. If its volume is 120 centimeter cube, then find the surface area. और वॉल्यूम भी दिया हुआ है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लेंथ 5:3:1 जो रेशियो है, 5 को आप 5x मान लीजिए, 3 को ब्रेथ को 3x मान लीजिए और हाइट 1 को 1x मान लीजिए. And now let us find out the volume. Volume is given by length into breadth into height. Volume in the question is given as 120 equals length is 5x multiplied by breadth is 3x, height is 1x. Multiply करेंगे, 5 into 3 is 15, 15 1 into 1 is 15. So that's 120 equals to 15. अच्छा, अब नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स, तो x भी मल्टीप्लाई होगा. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा x क्यूब. सो 15x क्यूब इज इक्वल टू 120. अब 15 को आप राइट से लेफ्ट लेकर आइए, वो डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 120 अपॉन 15 हो जाएगा. 120 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स x क्यूब. 120 को 15 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 8 एज x क्यूब. Now if x cube is 8, then x हमारा एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 8 आता है. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 8 आता है? तो वैसा नंबर 2 है. 2 का क्यूब 8 होता है. और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि if x cube equals to 8, then क्यूब को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे, वो क्यूब रूट हो जाएगा. x is equal to cube root of 8 and cube root of 8 is, we know,
2, तो x की वैल्यू ऐसे भी आप 2 ले सकते हो, बट देन आई हैव टोल्ड यू दैट टू लर्न द क्यूब्स एटलीस्ट टिल 30 तक आप क्यूब्स लर्न करें तो आपको पता चल जाएगा कि 8 2 का क्यूब होता है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये 5x हो जाएगा, 5 इंटू 2, तो लेंथ हो गई 5 इंटू 2 10, 3x हो जाएगा 3 इंटू 2, breadth is 6, और 1x हो जाएगा 1 इंटू 2, हाइट इज 2। द क्वेश्चन इज आस्किंग द सरफेस एरिया। लेंथ हमें 10 मिल गया, ब्रेथ 6 मिल गया और हाइट 2 मिल गया। लेट अस कैलकुलेट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड गिवन बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। सो दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस B इंटू एच हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस L इंटू एच हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 6, दिस इज 60 प्लस 12 प्लस 20, दिस इज 92। So 2 multiplied by 92, that's 184. So the surface area will be 84. The units are given in centimeter. So our answer is 184 centimeter square. Let's go back to the question. Answer is 184 centimeter square. Option number A. Question says a pit 5 meter long, 3.5 meter wide is dug to a certain depth. If the volume of earth taken out of it is 14 meter cube, then what is the depth of the pit? Question में ऐसा बताया कि एक पिट मतलब एक गड्ढा खोद रहे हैं ये, और उसकी लेंथ है 5 मीटर, उसकी ब्रेड्थ है 3.5 मीटर, और ये जो गड्ढा हम खोद रहे हैं इससे जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 14 मीटर क्यूब। देन दे आर आस्किंग कि ये जो गड्ढा है इसकी डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब हाइट की है, तो हाइट निकालने का क्वेश्चन है। हाइट इज वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम इज 14, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 5 इंटू 3.5। ये डिनोमिनेटर में 3.5 का डेसिमल पॉइंट हटाना है तो न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 14 इंटू 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 35। 5 एंड 10 कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 2, 14 इंटू 2 इज 28 अपॉन 35। दोनों को आप 7 से कट कर दो, दिस इज 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 ये मीटर में आ रहा है, इसे आप सेंटीमीटर में लाइए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, कैंसिल कर देंगे, 400 अपॉन 5 कर लीजिए या 5 और 100 कट कर दीजिए, दिस इज 20, 4 इंटू 20, आंसर इज 80 सेंटीमीटर। तो जो गड्ढा है उसकी जो डेप्थ होगी 80 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन सिंपल था, गड्ढा खोद रहे थे, मिट्टी जो निकाल रहे थे उसका वॉल्यूम दिया हुआ था और पूछा था गड्ढा उसकी डेप्थ क्या होगी। डेप्थ मतलब उस बेसिकली हाइट के सेंस में आप डेप्थ को हाइट ले सकते हैं जब आप गड्ढा खोदने की बात करें। तो हाइट का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। आंसर इज 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी।